अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इंतखाबी नताइज के बाद पार्टी के वर्किंग सदर के तारक रामाराव ने पार्टी के मरकजी दफ्तर तेलंगाना भवन में मुंतखब पार्टी एमएलए से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों और पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ एक प्रेस मीट मुनक्किद की और इस दौरान मीडिया से खिताब किया। हालिया इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी डीसीसी के सदर समीर वलीउल्लाह ने इस कामयाबी को हर रुकन की इज्तिमाई कोशिशों से मंसूब करते हुए पूरी पार्टी को दिली मुबारकबाद पेश की। समीर वलीउल्लाह ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस पार्टी पर अवाम का एतमाद जीत को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करता है और अवामी खिदमत के इसी जज्बे को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी की कुछ जमानतें जो वोटरों की तरफ से सौंपी गई हैं नई हुकूमत के तहत फौरी तौर पर नाफिज की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि उन पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। वलीउल्लाह ने तस्दीक की। उन्होंने निशानदेही की कि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कामयाबी के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम पुराने शहर में तरक्की और अवामी बहबूद दोनों पर मरकूज की, जो बीआरएस के दौरे हुकूमत में नजरअंदाज की गई। AIYF-CPI के रियासती सेक्रेटरी कोन्नानेनी सांबशिवराव को एमएलए के तौर पर जिताने पर कोत्तागुड़म हलके के लोगों का शुक्रिया अदा किया गया और कांग्रेस पार्टी से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना के अवाम की भलाई के साथ हुकूमत तश्कील दें। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन AIYF के रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी वलीउल्लाह कादरी और के धर्मेंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस हुकूमत को आज से नौजवानों और तलबा की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। इस मौके पर AIYF के रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी वलीउल्लाह कादरी और के धर्मेंद्र ने मुश्तरका तौर पर कहा है कि बीआरएस के गुज़िश्ता 9 साल के दौरे हुकूमत में बेरोजगारों, तलबा, मजदूरों और किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले असेंबली सिरपुर कागजनगर से बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर पल्लवी हरीश बाबू ने 3088 वोट से जीत हासिल कर ली। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से खिताब किया। కేంద్రంలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ సందర్భంగా సిర్పూర్ నియోజకవర్గం నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా దాదాపు 3000 పైచీలకు మెజారిటీతో నన్ను గెలిపించిన సిర్పూర్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు। రెండు విషయాలు మీకు ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించదలుచుకున్నా। మొదటగా ఈ విజయం దివంగత ఎమ్మెల్యే శ్రీ పాల్వాయి పురుషోత్తమరావు గారి స్మృతి పథానికి అంకితం। రెండు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు, అభిమానులు, సానుభూతి పరులు, పాల్వాయి అభిమానులందరూ అకుంఠిత దీక్షతోటి దాదాపు 2 నెలలుగా అవిశ్రాంత పోరాటం చేసినారు। వారందరికి కూడా ఈ విజయం అంకితం। ఇవాళ మెజారిటీ కొంచెం తక్కువ కావచ్చు కానీ భవిష్యత్తులో దాదాపు 20 ఏళ్ళ రాజకీయం చేద్దామనుకునే ఆలోచనలో ఇవాళ తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో అన్ని వర్గాలు, ఇవాళ మా కొన్ని వర్గాలు దూరమైనవి, అన్ని వర్గాలను ఒక సమదృష్టితో చూసి వారందరిని కూడా ఒకతాటి మీద నడిపించి సిర్పూర్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములమవుతాం। తప్పకుండా ప్రజల ఆకాంక్షలకు మేరకు పనిచేస్తాం। వారికి చేదోడు వాదోడుగా ఉంటాం, అండదండలుగా ఉంటాం। అన్ని విషయాల్లో మేము దాదాపు 7 సంవత్సరాలుగా నియోజకవర్గంలో ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించడం, కాలికి బలపం కట్టుకొని తిరిగినాం, జైలుకు పోయిన 40 రోజులు, ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పనిచేసినాం। ప్రతిపక్ష నాయకునికి మీరు ఇవాళ అధికార హోదా ఇచ్చిందంటే సిర్పూర్ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎంత ఆలోచన పరులు, ఎంత తెలివి పరులు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి। గతంలో కూడా 89లో ఇట్లనే పురుషోత్తమరావు గారు కుండ గుర్తు మీద బెజ్జూరు మండల ప్రెసిడెంట్ నుంచి ఉండగా సిర్పూరు నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా నిల్చున్నప్పుడు సుల్తాన్ అహ్మద్ గారు చెన్నూరు నుంచి ఆయన రావడం, కేవీ నారాయణరావు గారు అప్పటికే 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే, చీఫ్ విప్, అధికార పార్టీ అండదండలతోటి ఆయన ఆ రోజు చాలా బలీయంగా ఉన్న సమయాన కూడా అట్లనే ట్రయాంగిల్లో మేము ఆ పురుషోత్తమరావు గారు కుండ గుర్తుతో ఫస్ట్ టైం గెలిచారు। తక్కువ మెజారిటీ అయినా రెండోసారికి పెద్ద మెజారిటీ కాబట్టి అదే ఒరవడిలో మేము కూడా ఇవాళ సిర్పూర్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు తప్పకుండా రుణపడి ఉంటాం। వారి తెలివికి, వారి ఆలోచనకు, వారి కట్టుబాటుకు, వారి కమిట్మెంట్కు, నిబద్ధతకు మనమందరం జోహార్లు అర్పించాలి, సలాములు కొట్టాలి। ఎందుకంటే ఇవాళ చూడండి ఎంత మేము అవతల ఓడగొట్టింది ఎవరిని ఒక దిక్కేమో 3 సార్ల కాకలు తీరిన యోధుడు అని చెప్పుకునే, బయట వేరే నియోజకవర్గ కోనేరు కోనప్ప గారి గురించి గొప్పగా చెప్పుకుంటాం, మేము అది డొల్లా అని చెప్పగలిగినాం। ఇంకోవైపు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు బహుజన సమాజ్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, వారు రిటైర్డ్ IPS ఆఫీసర్, ఆయన
రిటైర్డ్ అడిషనల్ డీజీపీ ఆయన, అవునా? ఇవాళ ఆయనకు ఉన్న వనరుల్లో 1% కూడా మాకు లేకుండే, అయినా అన్ని ఆటుపోట్లను అధిగమించినాం. సిర్పూర్ నియోజకవర్గానికి ఒక స్థానిక నాయకత్వాన్ని ఇవ్వాలి, బలమైన నాయకత్వాన్ని ఇవ్వాలి, నిబద్ధత గల నాయకత్వాన్ని ఇవ్వాలి అనే ఒకటే ఆలోచనతోటి మేము పనిచేసినాం. దానికి మేము ఇవాళ ప్రతిఫలం తీసుకున్నా, ఈ ప్రతిఫలంలో మనం కార్యకర్తలు కూడా మేము చెప్పేది ఒకటే, ఇవాళ కార్యకర్తలకు కానీ నాయకులకు కానీ ఇవాళ పార్టీలో ఉన్నవారు, అధికారం ఎప్పటికీ ఎవరికి శాశ్వతం కానే కాదు. అధికారం తన వెంట అహంకారాన్ని తీసుకొస్తుంది. ఇవాళ కోనేరు కొనప్ప గారు ఇవాళ ఓడిపోయినారంటే 2018లో ఆయనకు వచ్చిన మెజారిటీ చూసుకొని అహంకార పూరితంగా వ్యవహరించడంతో ఆయన ఓడిపోయిండు. అదే పరిస్థితి మనకు రావద్దంటే అహంకారాన్ని దరిచేయనివ్వద్దు కార్యకర్తలందరూ కూడా. తప్పకుండా భవిష్యత్తులో అహంకారానికి దూరంగా ఉంటాం, ప్రజల కమిట్మెంట్ తో పనిచేస్తాం, ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తాం, తప్పకుండా ప్రజల సాధక బాధకాల్లో పాలు పంచుకుంటాం. అన్ని విషయాల మీద ఇవాళ కేంద్రంలో మా ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి మేము ఒక 11,000 కోట్ల జాతీయ రహదారిని శాంక్షన్ చేయించడం, తాండూరు నుంచి సాండ్గాం వరకు, గోండుపిప్రి వరకు ఆ పని పూర్తి చేస్తాం. ఇవాళ తుమ్మిడియేటి ప్రాజెక్ట్ ఉంది, జాతీయ హోదా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇవాళ వెనుకబడ్డ నియోజకవర్గాన్ని మళ్ళీ గాడిన పెట్టి ఒక చోదక శక్తిలాగా పనిచేసే ఆలోచన చేస్తాం. తప్పకుండా సిర్పూర్ నియోజకవర్గ ప్రజలకి వారి ఆలోచన విధానానికి ఈ విజయాన్ని అంకితం చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. బోలో मुल्क की आजादी के 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन तेलंगाना के नुमाइंदों ने कौमी दलित समिट की कॉल में ये कहते हुए शिरकत की कि दस्तूर हिंद में दलितों, कबायलियों, खवातीन, अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए जो हुकूक दर्ज हैं वो उन तक नहीं पहुंचे। दलित हुकूक की जद्दोजहद DHPS के रियासती जनरल सेक्रेटरी मारूफा का अनिल कुमार ने कहा, मरकज में बीजेपी की क़यादत वाली NDA हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद से आईनी हुकूक पर हमला तेज कर दिया है। जमहूरियत और सोशलिज्म के अल्फाज जो आइन का दिल हैं, आइन के दयाबच्चे से निकाल दिए गए हैं। आयरन लेग शहरियों के जमहूरी हुकूक पर टिका हुआ है। तहफ़्फ़ुज़ात और समाजी इंसाफ खतरे में है। ये हिंदुस्तान के आइन की जगह मनोधर्म शास्त्र को नाफिज करने की कोशिश करते हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतों को चाहिए कि वो बजट में फंड्स मुख्तस करें और SC और ST सब प्लान एक्ट को मुल्क भर में लागू करें ताकि आबादी के तनासुब से उनकी तरक्की पर खर्च किया जा सके। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि मुंबई को साफ सुथरा और खूबसूरत आलूदगी से पाक बनाया जाए और इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है। मुकम्मल सफाई की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए मुहिम में आम लोगों की शिरकत जरूरी है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने मुंबई वालों से अपील की है कि वो या तो मुहिम में हिस्सा लें या अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करें। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम मुकम्मल सफाई की मुहिम के तहत वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने D वार्ड में कमला नेहरू विद्यान और बंगाला तालु, गुड़गांव, चौपाटी, BIT जावल कैंपस में कमांची पहाड़ी इलाके का दौरा किया। विकास राज IAS चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और साबिक सरकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना और अविनाश कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की और खानसास असेंबली के सेक्शन 73 के तहत मुंतखब अरकान के नामों पर मुश्तमिल अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 नोटिफिकेशन राजभवन हैदराबाद में गवर्नर के सामने पेश किया। BSP बहुजन समाज पार्टी के लीडर अबरार हुसैन आजाद ने चारमीनार से कॉन्टेस्ट किया था। उन्होंने इलेक्शन के ताल्लुक से अवाम से अहम बातों पर पेशगोई की है। आइए देखते हैं अबरार हुसैन आजाद ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं 2023 तेलंगाना के असेंबली के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं और नतीजे भी आपके सामने हैं और मैं ख़ुद हल्का असेंबली चारमीनार से बहुजन समाज पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लिया और मुझे आवाम ने काफ़ी हिम्मत अफजाई की और बेहतरीन वोटों से नवाजा। मैं तमाम हल्के असेंबली चारमीनार के वोटर्स का मैं मशकूर हूँ और बिलखुसूस जब तेलंगाना में सियासी बदलाव की जो कैफियत आज पैदा हुई है उसको देख करके मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने वो सोच रखने वाले जो मुसलमानों के साथ शीरी ज़बान के साथ मुसलमानों को पीछे से गद्दारी करते हुए, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हुए, मुसलमानों के मसाजिद पर और मुसलमानों की वक्फ जायदादों पर रास्त हमला करने वाले हुकूमत को बिलखुसूस के चंद्रशेखर राव को इस रियासत से बेदखल कर दिया। और इसमें ख़ास करके मैं उन तमाम वोटरों का मशकूर हूँ और बिलखुसूस मुसलमानों का मशकूर हूँ
उन्होंने एक जगह हो करके इनके मुखालिफत में वोट का इस्तेमाल किया और इनको बेदखल कर दिया। और रही बात हल्का असम्बली मुशीराबाद के वोटरों ने दोबारा मोटा गोपाल एमएलए को मौका दिया। वो एक उनकी शख्सियत है, उनकी इनके सारी मिलनसारी, वो एक जो है ना एक शरीफ नफ्स शख्स है, उनको दोबारा मौका दिया। लेकिन वो आगे मुस्तकबिल में उन गलतियों को दोहराए बगैर अपने 5 साल बेहतर कारकर्दगी करने की हम उम्मीद रखते हैं। और हम चाहते हैं कि बिलखुसूस मुशीराबाद के डेवलपमेंट के ऊपर जो बजट खर्च दिया गया था वो खर्च किया जाए और मज़ीद बजट के ज़रिए हकीकत में मुशीराबाद को डेवलप किया जाए। ख़ास करके भोलकपुर में जो 22 करोड़ का जो बजट दिया गया था, जो आज भी उसके काम 5 साल मुकम्मिल होने के बावजूद भी वो जो काम नाकाम रहे हैं, नामुकम्मिल रहे हैं, उनको दोबारा करने का मौका दिया जाता है। जब भी रियासती हुकूमत की हो या मौजूदा एमएलए मोटा गोपाल के ज़रिए हो या कहीं पे भी हो, कहीं भी कोई कमी पेशी खामी नज़र आएंगी तो हम अपोजिशन के तौर पर अपने आप को हमेशा जो है ना उस पर सवाल करने के लिए हम जो है ना मुंजमद होंगे और हम जो है ना मुस्तकबिल में मजबूत सवालात के ज़रिए इनकी कारकर्दगी को बेहतर करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम एहतजाज करेंगे, धरने करेंगे। और यहाँ पे भी ये गाफिल होते हैं, गफलत बरतते हैं, हम इनको एहसास दिलाएंगे कि आवाम ने आप पे एतमाद किया है, आपको चाहिए कि आवाम की खिदमत करें और आप जब खिदमत से गाफिल होंगे तो हम वो पीछे रहेंगे। और मैं तमाम वोटर्स का जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, मैं उनका मशहूर हूँ। भले ही हमने अपना खाता नहीं खोला लेकिन हमको बहुत कम वक्त मिला तारुफ का। हम यही सिलसिले को अपनी कोशिशों को काविशों को जारी रखेंगे, आवाम के दरमियान में रहेंगे और अल्लाह से खबी उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल क़रीब में हम आवाम के एतमाद को हासिल करने में कामयाब होंगे। जय भीम, खुदा हाफिज। तेलंगाना स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट किशन रेड्डी ने गोचा महल एमएलए राजा सिंह को तीसरी बार एमएलए बनने की खुशी में मुलाकात की और शॉल उड़ाकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। रिटायर्ड डीसीपी और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के टास्क फोर्स के ओएसडी राधा किशन राव ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। केसीआर की हुकूमत में रिटायरमेंट के बाद वो तौसी पर थे। राधा किशन पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने बीआरएस हुकूमत के दौरान मुबैना तौर पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी लगाया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हलके में कामयाबी हुई है। मजलिस की कामयाबी पर मजलिसी पार्टी के चाहने वालों ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए मजलिस के तमाम कारकुन को मुबारकबाद पेश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब को शहीद नगर की आवाम से बहुत बहुत मुबारक, जो 7 हल्कों से कामयाबी हासिल करे हैं। जो स्टार्टिंग चार मीनार चंद्रायन गुट्टा से अकबरुद्दीन अवैसी साहब, चार मीनार से जुल्फ़िकार अली साहब, याकूतपुरे से जाफर हुसैन मीरा साहब, बहादुरपुरे से मुबीन साहब, कारवान से कौसर मुहिद्दीन साहब, नामपल्ली से हमारे माजिद हुसैन साहब, से अहमद बलाला साहब। इंशाअल्लाह ये जो कामयाबी मिली है पूरी आवाम को मुबारकबाद देते हैं शहीद नगर की तरफ से। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं शहीद नगर की आवाम, जो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह फिर जो है आइंदा ज़िंदगी में कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरा एमएलए ठहरने के वास्ते दम ना रहे। इंशाअल्लाह ऐसा काम करके बताएंगे। और जो है नामपल्ली से फिर कभी फिरोज खान इधर आने की कोशिश भी ना करे, इंशाअल्लाह वैसा काम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबी नताइज 2023 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की और इस दौरान मीडिया से खिताब किया। That only time will tell. But yes, people of Telangana have given their verdict, which we respect. And a new government headed by Congress party will be formed over here. We don't know what changes will happen, but this is the decision made by the people of Telangana, which one will have to accept it. And we respect them, and we have offered our best wishes to the new incoming government.
But as far as our party is concerned, we'll continue with our struggle, and that is to strengthen our party, that is to ensure that the development works which have been started, they are taken to its logical end. Thirdly, we'll be working hard to ensure that more development projects are brought to our assembly segments headed by MLAs. And also at various places where I have gone, there are many public issues which we have promised to take it up. For example, in Vikharabad, there's a need for junior colleges and many issues on these lines. So we'll be taking up, our MLAs will be as forthright as they have been before and boldly talking about the issues concerning the people of Telangana in general and minorities in particular, and about their own assembly segment. So only time will tell what change will happen, how will it happen. So, it's too early to say about it. It's too early to talk about it. So we'll have to wait, let the new government be formed and then you and me will be there to see. One more question, please. If you were to give one or two pieces of advice to the new government, what would that be? You are a seasoned politician. No, I will. I'm very thankful to you for your magnanimity, but I am not a seasoned politician. I'm still learning politics. And don't understand. No. I'm not. I'm not trying to show I'm very humble or modest, but that is the honest opinion I have about myself. It is a new government. Let us see what happens, what they do. They have made various promises to the people of Telangana. As far as we are concerned, we will make this government accountable. We'll be discharging our role as an opposition party, and we'll be trying our best. Sir, what BRS believes is this is not a wave of Congress, because other states also we have seen the performance of Congress party. What are the defects that the BRS party, or what are the faults that the BRS party has done which they had lost power? Again, it is not. It is a question which I cannot answer for any other political party. It is for the BRS party to do their own homework. I'm sure they'll do it, and they also know that what weaknesses were there, what needs to be corrected, and that is for them to decide. But I had called up the ex-Chief Minister, Mr. KCR, yesterday, and I offered my best wishes to him. And I hopefully, if I get time, I'll also go and meet him also, because I have a good relationship with him. I spoke to KT Ramarao also, and I told him that that this is the verdict, this is part and parcel of political life. And he said yes, he accepted it. He said yes, these are things which happen in politics. And he said that I feel that this is a great opportunity for KTR and Harish Rao to play an important role as an opposition party leaders. Let us see what happens. So yesterday BJP has won in Rajasthan. One MLA from Awam Mahal, sir, his name is Balmukund Acharya. He's called the officials, dialed the officials today and told that those non-veg stalls नहीं होने चाहिए streets पर, sir. Officials को कॉल करके बोल रहे कि non-veg stalls streets पर से हटाने चाहिए, नहीं होने चाहिए. इस पर क्या है? नहीं, ये देखिए, ये गलत है. किसी को इख्तियार नहीं है. Freedom of expression means freedom of what you want to eat also. आप किसी को रोक नहीं सकते कि नॉन वेज स्टॉल नहीं रखेंगे, वेज स्टॉल रखना चाहिए. कैसा, कौन से कानून तहत करे? तो गैर गलत है ये, बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है. आप आखिर किस बुनियाद पे आप बोलेंगे? क्या करना चाहेंगे आप? फिर वो लोग कहाँ पे अपना रोजगार तलाश करेंगे, कहाँ से अपना घर चलाएंगे? और उसमें क्या खाली मुसलमान है, उसमें गैर मुस्लिम भी हैं. अब मच्छी की दुकान है, अंडे की दुकान है, अंडा फ्राई की है, वो तो सब चलाते हैं. वो लोग क्या करेंगे?
तो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत फैसला है उनका। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो डिसीजंस अगर लिए जाएंगे तो इससे तो आप पहले ही बेरोजगारी ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, कीमतें आसमानों को छू रही हैं और ऊपर से आप खाने पे टारगेट कर रहे हैं। सर अगर हम बात करें तेलंगाना की, बाकी के हिंदी हार्टलैंड स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जहाँ हैदराबाद शहर के जेटीसी एरिया में कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाई है, और उसी तरीके से इंदौर में भी उनका परफॉर्मेंस जीरो रहा, रायपुर में परफॉर्मेंस जीरो है। तो ये जो अर्बन एरिया में कांग्रेस का जो इस तरीके का परफॉर्मेंस है, यहाँ पर भी डीआरएस ने अच्छा परफॉर्म किया जेटीसी एरिया में, इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस रूरल में भी परफॉर्म कर पाई तेलंगाना में, लेकिन अर्बन में बिल्कुल भी उनको कोई सफलता हासिल नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो यानी सब्जेक्ट टू करेक्शन वोट परसेंटेज में 2% का फर्क है, 2%, राइट बालू साहब? दिस 2% वोट डिफरेंस है, इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, but yes, in terms of seat that gets bigger, but vote percentage wise only 2% difference is there. Yes, it is a fact that Congress could not win in Hyderabad Parliament, in Secunderabad, in Malkajgiri also. So yes, that is a fact, and that is also a strength of MIM and BRS also, that they could win from there. So to make it very different, urban, rural, I don't think so that is correct, because end of the day, I can also say that when you have won here, why didn't you win in Vikharabad and in Tandur or Pargi? Or why couldn't you win in Ibrahimpatnam? So every area has a different challenge. All depends on candidates, what was the mood over there. But the fact is, yes, we also played an important role in that. Our party did play an important role in that. 24 का इलेक्शन सामने है सर, अगर हम हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें आगे, फिर से मेरा वही सवाल सर, वोटिंग परसेंटेज काफी कम, क्या सिटिंग एमपी यू एंड पार्टी प्रेसिडेंट आल्सो यू सी इट एज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ टू इंक्रीज एंड हाउ टू अप्रोच द पीपल एंड कन्विंस देम टू वोट, एक्सरसाइज देयर वोट, लो वोटिंग परसेंटेज, वेरी नैरो मार्जिन से विक्ट्रीज हो रही हैं, इसको कैसे देखते हैं और इसको कैसे आप कोशिश करेंगे कि इसको हम नहीं, लो पोलिंग परसेंटेज के कई वजूहात हैं। एक वजह यह है कि गैर जरूरी के हर बार सेंसिटिव के नाम पर पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्स को आप खड़ा कर देते हैं और बैरिकेड्स लगा देते हैं, रोड्स बंद कर देते हैं आप, और आप लोगों को निकल कर जाने की तकलीफ हो जाती है उस दिन। तो वो एक वजह है। दूसरा वजह यह है कि हमारी कोई कमजोरी होंगी, हमको उसको दूर करना चाहिए। तीसरा यह है कि आवाम में भी थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है, छुट्टी मनाते उस दिन कि बाहर चले आते। तो ये अहम 3 चीजें। और चौथी चीज ये है कि पोलिंग बूथ जो है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट के स्कूल्स प्राइवेट बिल्डिंग में चल सकते हैं, तो पोलिंग बूथ प्राइवेट शादी खानों में क्यों नहीं आते भाई? कंप्लीटली मेरे को बिल्कुल ताजुब होता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि अगर पूरे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग में चलते, तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं लेते किसी मैरिज हॉल को? आप यानी एक जगह ले रहे आप और एक जगह पे 1100 वोट है, माने 2 कमरों को आप, इससे कम कमरा है और आप 2 बूथ, तो कहां पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा? आपके पास कई मैरिज हॉल्स है, आप लीजिए ना। ईसीआई को तो पैसा मिलता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बजट सैंक्शन होता, तो उनको चाहिए कि भाई जहां पे ऐसे मैरिज हॉल्स हैं या प्राइवेट हॉल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, आप एक दिन के लिए उनको लीजिए, एक दिन के लिए 4 दिन जो भी लीजिए, ताकि कम से कम लोग जाके वोट डाल सकें। और आज भी हम देखें कि कई बुजुर्ग लोग नहीं डाल सके वोट, क्योंकि उनको सहूलत ही नहीं जाने की वहां पे। और फिर आप एक कंडीशन लगाते कि गाड़ी का दूर रोक देना, तो उससे भी वुमेन पोलिंग मुतासर होती। तो हमारे तरफ से जो भी कमजोरी है, हम उसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे, और हम लोग मेहनत करेंगे हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पे हमारे को लो पोलिंग परसेंटेज हुआ। जाहिर है हमारे में कोई कमजोरी रही होगी, उसको हम बराबर दूर करेंगे, मुलाकात करेंगे आवाम से। अब तो बूथ वाइज डेटा आता है,
तो हम देख रहे हैं, उस पर काम होगा और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। 3 राज्यों में बीजेपी की हासिल की और ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इनविंसिबल है, वो हैट्रिक करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से उनके हौसले बुलंद हो गए और अभी ऑपोजिशन के पास चेहरा ही नहीं है, क्या आप ही समझते हैं सर कि 3 राज्यों के बाद बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और ऑपोजिशन के पास मोदी का जवाब नहीं है? लाइटर वेन में मैं भी इनविजिबल था वहां पे, तब भी बीजेपी जीत गई। मैं तो था ही नहीं वहां पे, तब भी बीजेपी जीत गई। हम लोग राजस्थान में 10 सीट लड़े तो और 4 सीट मध्य प्रदेश में लड़े, छत्तीसगढ़ में तो हम थे ही नहीं, तब भी बीजेपी जीत गई। अब नहीं मालूम अब किसको ब्लेम करेंगे ये लोग, अब किसको ब्लेम करेंगे नहीं मालूम, सोचना पड़ेगा इन लोगों को। हमारी बीजेपी जीती वहां पर, यानी मध्य प्रदेश में जो मेजॉरिटी बीजेपी लेकर आई वो फॉर्मेडेबल है, वो मैंने बड़ी मेजॉरिटी है वो। इतने सीट के 140 कुछ के ऊपर लेके है ना, 160। आप बताइए, आप छत्तीसगढ़ में सिटिंग सीएम आपका है और इतना वो लोग वो थे वहां पे, आप राजस्थान में। तो यस, ये जो 3 स्टेट के डिसीजंस आए हिंदी हार्टलैंड के, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा, इनके लिए एक क्या बोलना चाहिए उसको, सही लफ्ज क्या होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा कहीं ये उनके लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए 24 के लिए, क्योंकि 65 लोकसभा की सीट है, उसमें 65 लोकसभा की सीट है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान 65 में से मेरे ख्याल से लास्ट टाइम एक कमलनाथ साहब के बेटे जीते थे। राजस्थान तो कंप्लीट वाइप आउट था और छत्तीसगढ़ में शायद 1 या 2 जीते थे। मैंने बीजेपी 63 सीट जीती थी वहां पे लास्ट टाइम। तो यकीनन इनको ये तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धक्का है ये। 3 स्टेट्स में आप एक तो पावर में थे आप, तो अब देखिए क्या होता है, कितने मोहब्बत की दुकान खुलती नहीं खुलती नहीं मालूम। सर ये याकूबपुर और नामपल्ली में इतनी कम मेजॉरिटी आने की वजह क्या सर? नहीं, याकूबपुरे में शायद हमको देखना पड़ेगा क्या कमजोरी थी, हमसे क्या काम नहीं हुआ है वहां पर, और इंशाल्लाह हम उस पर वर्क करेंगे। यकीनन हमारे लिए एक फिक्र की बात है और मुझे पूरा यकीन है कि इस पर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जल्द से जल्द उस पर काम शुरू होगा और हम अपना पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ाएंगे वहाँ पे और जो भी कमज़ोरियाँ खामियाँ रही उसको इंशाल्लाह हम ज़रूर दूर करेंगे। मैं याकूबपुरे की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको वोट भी दिया, नहीं भी दिया, और जो वोट डालने नहीं निकले, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अगर आप निकल के वोट डालते, जो मजलिस के एक बहुत बड़े चाहने वाले हैं, तो इतना ये मजलिसी लीडर सैयदा फलक ने असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना असेंबली इंतखाबात 2023 में AIMIM की जीत पर मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के गवर्नर की तरफ से दर्ज झेल नोटिफिकेशन 3 दिसंबर 2023 को तेलंगाना गजट के एक गैर मामूली शुमारे के हिस्से के 2 शाये किए गए और आईन हिंद के आर्टिकल 174 की शक्ल 2B के जरिए अता करदा इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना के गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मशवरे पर इस तरह रियासत तेलंगाना की दूसरे खानसास असेंबली को तहलील करते हैं।